Good morning, students. Welcome to this video lecture. So today, in this session, uh, we will discuss a beautiful poem written by one of the greatest of poets of modern times, that is William Butler X. WBX. He is otherwise known as, and as I said, he is one of the major poets of the modern times. Right? He is also a Nobel laureate. So Nobel laureate means he has been awarded with Nobel Prize for Literature. Right? And one of his major poems is the Ballad of Father Gilligan, Gillian. Sorry, Gilligan rather. I am sorry. So this is the poem, the Ballad of Father Gilligan. But before approaching this poem, we must have some idea about what a ballad is. I hope most of us don't know the exact meaning of a ballad. So let me make you clear what a ballad is. Ballad is a form of English poem. So as we know, there are many forms of English poetry, and ballad is one of them. And ballad is simply a poem which tells a story. I hope you understand. Ballad is a poem which tells a story. So in other words, ballad is a story in the form of a poem. Again, in other words, ballad narrates us a story. Narrates. I hope you can feel the word narrate. So, ballad is a narrative poem. Narrative. Ballad is a narrative poem. Look at the word narrative. This word narrative has come from the word narrate. I hope you know the meaning of the word narrate. Narrate means in Odia you say ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା. ମାନେ ballad ଆମକୁ ଏକ ଗପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ. Right? So, ballad is a narrative poem. Right? So, narrative ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ in Odia. Okay, because it tells us a story, narrates us a story. So, a ballad is otherwise a narrative poem. Come to the title. Another key word of the title is Father Gilligan. Look at the word father. So, you know, the priest of a church is called father. And Gilligan, whose exact name was Peter Gilligan, was the father of a particular church. Right? So, now the whole meaning of the title. This poem tells us a story related to a priest named Peter Gilligan. माने ओडिया रे ए कविताटा आमको पीटर गिलिगन नामक जड़े चर्च पूजक विषय रे गोटे गप वर्णना करुअछि. Understood me? So that's the meaning, right? So again, let me tell you, this is a very crucial poem. I mean, very important poem, major poem, and we hope in our way, well, extract from this particular poem is all a possibility in every exam. Understood me? So we have to focus. We have to focus on this point, and this point will play a major role in your coming CHSE 2021. CHSE 2021. So, should we start? Let's start. The story will be pretty interesting,
We shall explain each word, each sentence one by one. Okay, come to the first stanza of the poem. I hope all of you have books. So while teaching the poem, okay, your eyes must roll over each word, each sentence properly so that you can understand in an easy manner, right? Okay, so first line of the poem. The old priest Peter Gilligan was weary night and day. Look at this. In the first sentence, first line, old priest. So it means, well, we are given an extra information. Peter Gilligan, otherwise known as Father Gilligan, okay, was already an old man. First thing, he was a priest. That's why he is addressed and he is titled as Father, naturally priest of a church. Okay, he was already old. Next line, was weary night and day. Look at this. Weary. W-E-A-R-Y. Weary. Weary, simply it means tired. T-I-R-E-D, tired. Tired means, you know, thaki jiba, klanto heba, abasanna heba. In our own language, rasi thaki jibata. So, the old priest Peter Gilligan was weary night and day. It means Peter Gilligan was tired night and day. In Odia, Peter Gilligan, dino rati, rati dino, whatever it might be, thaki jai thile, klanto hei pori thile. Now you will ask me, sir, why, sir? Why was he tired night and day? You must ask me. And the possible answer is given in the next two lines of the stanza. First stanza, have a look. For, the third line starts with for. And you know, for also means because. When we use for at the beginning of a line or sentence, it carries the meaning of because. Okay, right. So, then why was Peter Gilligan tired night and day? Given for because half his flock, keyword flock, half his flock were in their beds or under green sods lay. Another key phrase, green sods, S-O-D-S. Well, we have to clearly find out the meaning. For half it, so we are discussing an answer to which question? Now, remember, why was Peter Gilligan tired night and day? We are trying to find out a possible answer, well, a possible solution to the question that has been raised in the first two lines of your first stanza. So, half his flock. Now, what is flock? Normally, as we all know, a flock is a group of sheep, a group of lamb, sometimes, okay, cattle, as you know, well, is also referred to as flock, right? So, but normally, flock is applied to, normally, a group of sheep. Okay, right. So, half his flock, उनके फ्लॉक में से आधा. Now you can ask me, sir, what is the relation in between Peter Gilligan, who was, you know, the father of a church, and a group of sheep? You can ask me, was he a shepherd? You know shepherd? S-H-E-P-H-E-R-T. तुम पूछ सकते हो, was he a shepherd? Shepherd, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ shepherd ବୋଲେ ମେଢ଼ା ଚଢ଼ିଆ. You know, ମେଣ୍ଢା ଯିଏ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚରେଇ ଥାଏ, ମେଢ଼ା ଚଢ଼ିଆ. It's not that ମେଷ ପାଳକ, you know, right? So, you can ask me clearly, well, कि सर पीटर गिलिगन क्या shepherd थे? तो फिर फ्लॉक, उनके फ्लॉक ये कहाँ से आए? नहीं. Here, okay, flock will mean
something different. Flock, here it will mean Peter Gilligan का निज लोक. निज लोक? Yes. Well, we have discussed already कि Peter Gilligan was the father of a particular church. Well, I will give you some extra information. Now, what kind of church? Let me say you, he was the father of a church which was located, must have been located in a rural area, in a countryside. Okay, such a church, I mean, whose father was Peter Gilligan. Okay, first thing. Now, second thing, you know, a church has a particular area under it. Let me repeat. A church has a particular area under it, right? And that particular area is called P-A-R-I-S-H, parish. ठीक है? So what I said, a church has its own area. Well, a particular area may be consisting of many villages, right? Okay, and this particular area of a church is called parish. In Odia, गोटे चर्च रो गोटे निर्दिष्ट इलाका थाए हे पारे से निर्दिष्ट इलाकाटी तमर 6 7 8 10 खन गाँ के निकर हे थाए. ओके, आउ ई जिन 5 6 के 7 8 टा गाँ हला ई सबके मिसी करी हमें कहमा ई लोकालिटी के कहमा ई एरिया के कहमा parish, P-A-R-I-S-H. तो इट मीन्स ताहले इने फ्लॉक कहाँ के कुआ गला ई जिन 6 7 खन गाँ अच्छे ई समुदाय गाँ मनकर लोक मन के इने कंपेयर करा हीचे पूरे मेंढा पल सांगरे. ताहले इने फ्लॉक रो अर्थ होचे वेल ई चर्च रो जे निर्दिष्ट इलाका अच्छे से इलाकार समुदाय लोक मानंकु इने पोएट कंपेयर करिचन गोटे मेंढापल संगे हला. ताहेले वेल हिज फ्लॉक इति लगी कुआ हेचे कि पीटर गिलिगन र निजर लो. वेल, लेट मी से यू अनदर थिंग कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए फादर. कौनसी चर्च रो फादर कर कर्तव्य का धार्मिक कर्तव्य का हमको जानवा के पड़ता. वेल, पहला चीज होचे कि ए फादर is not only meant for performing prayers or only religious duties in a church. खाली चर्च रे पूजा पाठ करवाटा गोटे फादर रा काम नहीं से. वेल, ताहले आउ कणा कणा काम गोटे चर्च अंडर रे जिन इलाका अच्छे मुझे जहाँ कहली पेरिस. वेल, से इलाका प्रतिटी लोकर भल मन बुझवाटा भी फादर रा काम है. So a father has to, well, look after the well-being or the welfare of each member of the church. Each member माने प्रति सदस्य माने प्रतिटी लोक जिनटा कि से लोकालिटी जने मेंबर. वेल, अन्य हिसाब रे चर्च रो मेंबर. ताहले चर्च रो मेंबर किए चर्च रो अधीन रे जे निर्दिष्ट इलाका अच्छे से इलाकार प्रतिटी लोक चर्च मेंबर. वेल, आई होप यू अंडरस्टूड मी. बी श्योर. वेल, आई वाज डिस्कसिंग द ड्यूटीज ऑफ ए फादर. ताहले फादर ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हला तांको अंचलर प्रतिटी लोकंकर सुख दुख बुझवाटा. वेल, खाली सेति नहीं से जड़े लोक जदि मरीगला तार फ्यूनेराल राइट्स तार अंत्येष्टि क्रिया रे माने गुड़ाए प्रकार धार्मिक राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म करवा के पड़वा, धार्मिक कार्यकलाप परफॉर्म करवा के पड़वा. सेटा फादर करबे जनता कि हमर हिंदू धर्म रे जड़े लोक मरी गले आमे जड़े पंडित के डाकसन और से अंत्येष्टि क्रिया समापन करसन सेंता. नॉट ओनली दैट, इन आवर हिंदू ट्रेडिशन, ओके, व्हेन समवन इज अबाउट टू डाई, ओके, वेल, आमे कना करसु भागवत रु किसी लाइन पढ़सु, गीता रु किसी लाइन पढ़सु, ताहले जाय कि मरुथुवा लोक जनता कि आराम रे मरी पारबा. तो सेंता in Christian religion, in Christian culture, when someone is about to die, father visits his house, okay, and what he does, he chants
some hymns से किसी मंत्र आवृत्ति करबे किसी स्तोत्र आवृत्ति करबे किनु गीता so that the dying fellow dies a peaceful death understood me तो ये सब religious duties फादर करे राइट ताहेले आमे थर्ड लाइन डिस्कशन करूथनु अब आमे वी आर trying to find out a possible answer to which question कि why was Peter Gilligan tired night and day okay तो थर्ड लाइन रे आंसर टा हमको दिया है जे बिकॉज तांको लोकमानंक भितरु अधा हाफ हिज फ्लॉक ताहले जदि तांकर लोक माने फ्लॉक हेले दळे मेंढा पळ सांगरे जदि आमे तांको कंपेयर करू ताहले पीटर गिलिगन के आमे कंपेयर करमा कार सांगरे सेफर्ड माने मेढा चरिया वेल मेषपालक ताहले इनु जणा पड़ुचे कि पीटर गिलिगन तांकरी लोक मानके गोटे मेंढा चरिया जेनता तार मेंढा मानके सब बेले जत्न नेसी सेमानकर प्रतिटी जिनिसर हालचाल बुझसी इन द सेम वे पीटर गिलिगन टू केयर हिज पीपल वेरी मच सो द मीनिंग इज क्लियर जस्ट लाइक ए शेफर्ड केयरिंग सो मच or looking after so much his sheep in the same way Peter Gilligan cared much for his own people that's why okay I mean his people have been compared to flock and Peter Gilligan has been compared to the shepherd himself understood me now come to third line ताहले हाफ हिज फ्लॉक तांको लोकमानंक भितरु अधा वेयर इन देयर बेड्स देखो वेयर इन देयर बेड्स यू विल थिंक दैट वेयर इन देयर बेड्स तांको लोकमानंक भितरु अधा खटरे थिले व्हाट इज खटरे थिले नो खटरे थिले नो सज्जा साई हेकी खटरे थिले इट मींस हाफ ऑफ हिज पीपल were bedridden. You know bedridden? Well, bedridden. 1 minute. Okay. Were in their beds. It means they were bedridden. ओडियारे bedridden रो अर्थ होची कोनसी रोगरे सज्जा साई हेबा ताहेले तांको लोकमानक भितरु अधा सज्जा साई थिले or another line is there or under green swords lay look at green swords green you know what is green swords soil मिट्टी तो देखो तांको लोकमानंक भितर अधा सज्जा साई थिले किंबा ले ओडिया रे पड़ी रहिबा किंबा पड़ी रही थिले सबुज माटी तळे ग्रीन सॉइल तो फर्स्ट स्टैंजा लास्ट टू लाइन्स वेल ताहले पीटर गिलिगन काहे कि राति दिन क्लांत होई पड़िथिले काहे कि वेल जेहेतु तांक लोकमानंक भितरु अधा सज्जा साई थिले किंबा सबुज माटी तले पड़ी रही थिले सबुदिन पाई इट मीन्स पीटर गिलिगन के चर्च के लोकेलिटी में आई यूज द वर्ड पेरिस सो इन द पेरिस सम डिजीज हैड ब्रोकन आउट किछि गोटे रोग हे पारे किछि गोटे संक्रामक रोग वेल जेमिति कि वेल यू से कोविड-19 वेल सच an infectious disease had spread out तांका पेरिस रे गोटे महामारी व्यापी जाइथिला आ से महामारी रे तांका लोकमानंक भितरु अधा आक्रांत हेइथिले आ ये अधा लोक कोन हेइथिला ये अधा लोक या तो आक्रांत हे कि सज्जा साई थिले किंबा सबुदिन पाही सबुज माटी तळे सोई पड़िथिले इट मीन्स well 50% of his people was infected with an unknown epidemic
महामारी एपिडेमिक महामारी आउ ए महामारी रे गुड़ाए लोक मरी सारी गुड़ाए लोक शଯ୍ୟାଶାयୀ ହେଇକି पड़ी रही वेल आउ जो माने आगु मरी सारी वेल दे हैव बीन बरीड देखो दे हैव बीन बरीड समान को माटी तले पोती दिया जाइए वेल ऑब्वियसली कोठी दे हैव बीन बरीड ओके इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रेव्स समान को निज निज समाधि रे पोती दिया हेछि ताले समाधि रे पोती दिया हेछि माटी तले पोती दिया हेछि जो माटी रे एबे सबुज घास उठी सारी ताले फोर्थ लाइन रो मीनिंग हैला अंडर ग्रीन सॉर्ट्स ले सेमाने पड़ी रही थिले सबुज माटी तले इट मीन्स मेनी पीपल हैव ऑलरेडी डाइड ओके दे हैव बीन बरीड अंडर द सॉइल मीन्स दे हैव बीन बरीड इन द ग्रेव्स समाधि रे समानंकु दफना दिया हेतिला पोती दिया जाइतिला आउ समाधि उपरे वर्तमान घास उठी सारी अन्य अर्थरे सबुज माटी तले सोई पड़ी थिले यार अर्थ हैला वेल जोठी समानंकु पोती दिया जाइछि किबा समानंकु समाधि दिया जाइछि समाधि उपरे वर्तमान सबुज रंगर घास उठी सारी सेठी पई कोआइछि समान सबुदिन पई सबुज माटी तले सोई पड़ी थिले ताहेले ग्रीन सॉर्ट्स मीन्स ग्रीन सॉइल ले माने पड़ी रहिबा सोई पड़िबा दैट मीन्स दोज मेंबर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स हैव ऑलरेडी बीन बरीड ओके एंड मेजर थिंग grasses right have grown over their grapes जेहेतु घास उठी सारी सेठी पाई कुआई सबुज माटी माने ग्रेप्स कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास राइट एठी सॉइल माने ग्रेप्स अंडरस्टूड मी और नॉट दैट्स इट ताइले अनदर क्वेश्चन कम्स अप आमे डिस्कशन करूथिलु कि माने पीटर गिलिगन कहीं की दिन राति थकी पड़ी वेल जेहेतु तांको लोक मान भीतर अधा कौन होते या तो माने शଯ୍ୟାଶାୟୀ थिले किंबा सबुज माटी तले सोई पड़ी थिले अर्थात मरी जाइथिले ताहले व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन पीटर गिलिगन बिकमिंग टायर्ड ओके एंड द इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेडिंग ओवर हिज पेरिस अब पचारि पार कि सर पीटर गिलिगन तर क्लांत हेबा आउ तांकर पेरिस रे संक्रामक रोगर व्यापी जीवा भितरे संबंध कौन वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन आम डिस्कसन करूँ कि पीटर गिलिगन राति दिन थकी पड़ी ताहले कथा होची पीटर गिलिगन व्हाई वाज ही टायर्ड बिकॉज पीटर गिलिगन बीइंग द फादर ऑफ ए चर्च had to care, had to look after each and every member of his parish. तांको पेरिस रो प्रतिटी सदस्यंकर जत्न नेबाकू पड़ुथिला जो माने मरी जाउथिले सेमानंकर अंत्येष्टि क्रिया रे भी ये शामिल होथिले और जो माने मरिबा उपरे थिले वेल सेमानंक पाखकू जाई सेमानंकर प्रतिटी घर को जाई सेमानंको शांति रे मरिबा पई पीटर गिलिगन सहाय्य करुथिले और जेहेतु महामारी व्यापी और लोक मैंने पोक माछी भाया निश्चय मरुवे फॉर दैट मैटर पीटर गिलिगन इज टायर्ड विजिटिंग केयरिंग एवरी पर्सन ओके ही मस्ट हैव बीन अटेंडिंग सो मेनी फ्यूनरल ओके हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ बरिंग द डेड अगेन ही मस्ट हैव बीन विजिटिंग पीपल वेल अबाउट टू डाई helping them to die a peaceful death. So in this process, Peter Gilligan was restless. He had no time to take rest. दिन राति जेहेतु लोक मरुछंती सेतिपाई तांको विश्राम मिलू नथिला लोक मानंकु सेवा करी करी की अंडरस्टूड मी और नॉट सो नाउ जदि एग्जाम रे तम क्वेश्चन आसला कि व्हाई वाज पीटर गिलिगन टायर्ड नाइट एंड डे ताले हमें किछि लिखिबा गोटे जिनिस लिखिबा कि तांको
पेरिस रे तांको अंचल रे गोटे अजଣା महामारी व्यापी जाइतिला और पीटर गिलिगन जड़े माने चर्च प्रिस्ट हिसाब रे मरी जाइथिबा और मरुथिबा लोक माननकु जत्न नेबाकु पड़ुथिला सेतिपाई तांकु बिल्कुल विश्राम नेबा समय मिल नथिला इन इंग्लिश ओके एन अननोन एपिडेमिक had broken out in his locality. Peter Gilligan, being the priest, had to attend and care both the dying and the dead. That is why he was restless and tired. That's it. Okay, so this is the first stanza. In the first stanza, okay, well, we have been given about a particular situation. आमको गोटे परिस्थिति विषय कह जाए पीटर गिलिगन माने पीटर गिलिगन पेरिस रो परिस्थिति संकटमय थिला ओके द सिचुएशन वाज वेरी मच क्रिटिकल एंड पीटर गिलिगन हिमसेल्फ वाज इन ए टायर्ड कंडीशन राइट कम ओवर टू द नेक्स्ट स्टांजा द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टांजा एंड आई हैड टोल्ड यू कि बलार्ड नरेट्स ए स्टोरी सो रियल स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड स्टांजा बट बिफोर दैट द सिचुएशन हैज बीन एलाबोरेटेड टू यू हमको परिस्थिति विषय कहई एई परिप्रेक्षी रे कौन घटना घटिला लेट अस डिस्कस फ्रॉम द सेकंड स्टांजा वंस व्हाइल ही नॉडेड ऑन ए चेयर देखो वंस जैसे कि कोई स्टोरी शुरू होता है वंस अपॉन ए टाइम इन दिस वे द स्टोरी स्टार्ट्स वंस एक बार व्हाइल ही नॉडेड ऑन ए चेयर यू नो नॉडेड एन ओ डी डी ई डी nodded means D-O-Z-E-D, dozed. I hope you can understand what is dozed. Dozed बेले आम कलाहांडिया भाषा रे जुमरे बटा एंता राइट तो थरे पीटर गिलिगन गोटे चेयर रे बसिकी झुमरोथिले ही वाज फीलिंग यू नो कि पीटर गिलिगन रातों दिन थके हुए थे he felt very much tired okay आउ जने राति दिन परिश्रम करुवा लोक obviously he will feel sleepy आउ जोटी बसी बसे निश्चय he will be dozing से झुमराबा घूमेबा तो once upon a time ऐसा हुआ कि पीटर गिलिगन एक चेयर में बैठे हुए थे he was feeling very sleepy okay and in such a situation he was dozing so झुमरो थे okay right at the month hour of evening देखो month hour of eve look at this month hour of eve once while he nodded on a chair एक बार जब वो चेयर में बैठ के well what he was doing he was nodding what happened नहीं वो कब ऐसा कर रहे थे कौन से वक्त पे at the month hour of eve look at eve stands for evening actually ame modern english रे जा evening कहू old english रे eve जेंता कि हमें मॉर्निंग के मॉर्न भी कहसु सेंता तो दिस इज ओल्ड इंग्लिश दिस इज न्यू इंग्लिश ओके मॉडर्न इंग्लिश आई मीन हमें बालाड रे गोटे पोएट जानी सुनी करे गुड़ाए old and outdated words use करसी well I will tell you क्यों I will tell you a characteristic of a ballad is that the poet intentionally makes use of a number of old words which are no more being used in modern form understood me well पहले evening लगी use कराई से eve पहले हमर दिन गोबा पीटर गिलिगन झुमरो थिले कितने बड़े मॉथ आवर ऑफ इवनिंग एट द मॉथ आवर ऑफ इवनिंग संध्या रो को समय रे मॉथ आवर व्हाट इज मॉथ आवर एक्चुअली मॉथ आवर होचे dusk D U S K dusk I hope dusk you can understand otherwise known as twilight dusk twilight ओडिया रे गोधूली समय बेले एक्जाक्टली तुम सूर्य अस्त हो जाइथिबा आ सूर्य अस्त हैला परे भी चारिआडे
गोटे आलोक आउ अंधार गोटे कॉम्बिनेशन थिबा वेल दैट टाइम इज कॉल्ड दैट पीरियड इज कॉल्ड डस्क हैं ओके माने सूर्य ऑलरेडी अस्त ही सारी थी ना सूरज डूब चुका होगा लेकिन सूरज डूबने के बाद भी कुछ देर तक चारों तरफ अंधेरा और उजाला का एक कंबाइन इफेक्ट रहता है कि नहीं दैट इज कॉल्ड डस्क पहले मौत आवार अच्छा ई डस्क के पूरी मौत आवार कहां से कुआ गला वी मस्ट नो व्हाई इज डस्क रेफर्ड टू एज मौत आवार वेल वन थिंग लेट मी एक्सप्लेन at dusk we find moth flying plentifully. Now what is moth? Moth is a very small flying insects just like your house flies हम घर माछी भलिया moth भी संता किंतु moth बहुत छोट छोट they are very small you must have experienced sometimes a moth comes very closer to your ear and they produce a very irritating sound right in our Kalahandi language they are called ghunguti ghunguti must have seen right okay ताले ये गोधुली समय रे नॉर्मली चारिया रे घुनघुटी उड़ी बुलबाटा तुम निश्चित देखी थी से लगी हमें वेल डस्क के मौत आवर माने मौतर समय मौतर मुहूर्त बोली कहिसु आ ये मौत माने खाली माने गोधुली समय रे जे उड़ी बुलसन सेटा नहीं से सूर्य उड़ीबा आगु भी आमे एमान को उड़बाटा देखसु ओके सेति लगी मौत आवर का खाली डस्क लगी एप्लीकेबल नहीं से इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू डॉग DAWN डॉग पांतिया आमे जिन कहिसु ओडिया रे तो पांतिया रे कह कि गोधुली समय रे कह कि मौत माने बहुत माने देखबा के मिलसन किंतु इने moth hour का यूज करा है डस्क फाइन यदि एग्जाम रे असला व्हाट डू यू मीन बाय moth hour you should write moth hour means the period of dusk okay it also means twilight गोधुली समय पहले प्रीस्ट जिन झुमरो थिले किन समय थिला गोधुली समय थिला संध्यार गोधुली समय okay what happened at that time another poor man sent for him another poor man does not mean garib aadmi poor man means miserable helpless person who was about to die जड़े असहाय लोक जे कि मुमूर्षु अवस्था रे थिला हराहारी मरिबा हालात रे थिला काहे कि I had told you epidemic had spread out in the locality people were dying each moment each day one after another like insects लोक मैंने पोकमाछी भाया मरुंट तो आउ जड़े असहाय व्यक्ति जे कि मुमूर्षु अवस्था रे थिला पीटर गिलिगन को डकेइला से निजे तो डाकी नहीं आसी पारे ना काहे कि से मरबा हालत रे अच्छे कार हाथे गुले डके पोते थिबा कागे पीटर गिलिगन के देखो another poor man sent for him now sent for means called for